The fourth pillar of the democracy is ready for the judgment. Yes, sir. जैसा कि आप सबको विदित है, कल प्रेस में भी मैंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर acts under the 10th schedule, then he doesn't enjoy the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various High Courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द Supreme Court, from the High Court, for petitioner and respondent appear हुए, उनको मैंने पूरी हेयरिंग दी, एग्जॉस्टिव हेयरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा I will be hearing you if you want to continue with your arguments up to 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock, and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to he should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of record. The honorable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the House and it was to be passed, they were not there in the House. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be the member of this
august House, honorable House. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask me. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहाँ चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट, जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई, और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए, और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं श्री चैतन्य शर्मा जी। यहाँ लिखा छः ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड इफ द हाई कोर्ट whatever the high court says, there is a supreme court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी डिफेक्शन कैसे होगा? सिर्फ बिल के आधार पे भी एंटी डिफेक्शन? यस, होता है, वही मैंने पढ़ा है, और आप उस लॉ को देख ले। मेरा सवाल था कि क्या उनको भी सुना गया जो अफेक्टेड पार्टी जिसको
उनके लॉयर्स थे, क्योंकि दे उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप, ईमेल हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और एविडेंस एक्ट में ये बोल दिया कि जो आपकी जो ये मीडिया के अंदर कैमरास के अंदर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज आल्सो ए प्राइमरी पार्ट ऑफ द एविडेंस आल्सो। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया हैज amended the evidence act and the CRPC and the IPC, then there is no need to ask such kind of a questions. उनकी तरफ से बार बार वकील साहब एक ही मुद्दे को बोल रहे, मुझे और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। मैंने कितना टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ये इशू तो ये है कि चुनी हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है, 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी एज ए स्पीकर, because I have to dispense justice to everybody and to the Himachal Pradesh as a whole also, not to the BJP and not to the Congress party. आपसे ये सवाल पूछने के लिए इसका जवाब मिल सकता है कि विप की सर्विस उनको कैसे हुई या कैसे, मतलब क्या व्यवस्था? उनको विप की सर्विस हुई, कैसे होती है जी, थोड़ा ये पता चल जाए। उनको उनके सिग्नेचर हैं, रिकॉर्ड पर है, जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर पठानिया ने अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि व्हिप का उल्लंघन किया गया इसलिए ये अनैतिक है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी जानकारी पुनीत बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष सुना गया, दोनों पक्षों को भरपूर मौका दिया गया, लेकिन उनकी ओर से वकील ये कहते रहे कि हमें टाइम चाहिए। इस मामले में उन्होंने पूरी तरीके से नैतिक आधार पर यह फैसला लिया है कि व्हिप का उल्लंघन किया गया। पुनीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, अभी बागी विधायकों पर यह बड़ा फैसला आया है, जहां पर 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुनीत, पूरी डिटेल दे। देखिए, 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये 6 वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था। हालांकि क्रॉस वोट का इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता था, लेकिन व्हिप का उल्लंघन इन्होंने किया, उसके तहत कार्रवाई जो है वो स्पीकर की तरफ से की गई है। और लगातार जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की हरकत करेगा और जो अनुशासन की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इस वक्त ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये विधायक जो है सीएम आवास से अब बाहर आने शुरू हुए हैं। अभी कुछ एक विधायक जो है वो बाहर आए हैं, ये आप तस्वीरें सीएम हाउस के घर के बाहर से देख रहे हैं। 32 विधायक जो हैं वो इस समय सीएम के आवास पर मौजूद हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और भी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर भी अब सीएम आवास पर आने शुरू हो चुके हैं। ये अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको नजर आएंगे उस गाड़ी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि ऑब्जर्वर हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद अब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं सीएम आवास पर। इसी तरह की बात की जा रही थी कि कुछ ही देर में ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं पर बैठक होगी। तमाम विधायक यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, उन्हीं से यहीं पर मुलाकात की जाएगी। जितने भी विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, विक्रमादित्य को छोड़कर तमाम विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक एक करके अब ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और एक कड़ा संदेश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अगर कोई अनुशासन से बाहर कदम रखेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर तौर पर इस संदेश के आने के बाद बाकी जो विधायक हैं वो शायद अब फूंक कर कदम रखेंगे। जी
इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि हालांकि इसे भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बार बार स्पीकर कुलदीप पठानिया की ओर से ये कहा गया कि एक व्हिप जारी किया था, जो जनता है हिमाचल की, उन्होंने एक विचारधारा के आधार पर इन विधायकों को चुनकर कांग्रेस पार्टी के निशान पर विधानसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके गलत किया। यह अनैतिक था, इसलिए इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है। उन 6 विधायकों के नाम क्या क्या हैं एक बार फिर से हम आपके सामने रख दें। जिन 6 विधायकों की आज सदस्यता को रद्द किया गया है, इसमें राजेंद्र राणा का नाम सबसे ऊपर। राजेंद्र राणा जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही है। इसके अलावा सुधीर शर्मा की हम बात कर रहे हैं, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा, ये वो नाम हैं जो बागी हुए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी भी इनके पास कानूनी विकल्प हैं, वो इसे अपना सकते हैं। लेकिन पुनीत, अगर हम सरकार के संकट की बात करें, देखिए बीजेपी का काम तो बन गया, उन्हें अपना एक मेंबर राज्यसभा में भेजना था हिमाचल से, वो उन्होंने भेज दिया। लेकिन इस वक्त संकट इन विधायकों पर आ गया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप यह है कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, इसलिए इनकी सदस्यता चली गई। अब बाकी विधायक क्या करेंगे? देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अब जो है पहले जो विधानसभा का आंकड़ा था वो 68 था, यानी कि 68 था, अब वो घटकर 62 हो गया है। अब 62 के हिसाब से जो मेजोरिटी के लिए यहाँ पर अब विधायक चाहिए वो हो जाते हैं 32। अब 32 विधायक जो चाहिए, तो अब 32 विधायक जो हैं वो इस वक्त अंदर हैं। स्पीकर जो है वो पहले से ही सरकार के साथ ही है, तो कुल 33 विधायक जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर सुक्खू को छोड़ अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 32 विधायक जो है इस वक्त अंदर हैं। 33 जो हो गए, और सिर्फ अभी एक विधायक जो है विक्रमादित्य, उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ऑब्जर्वर यहां पर पहुंच चुके हैं, विक्रमादित्य यहां पर नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा तमाम विधायक, स्पीकर जो है वो विधानसभा में थे, बाकी 32 विधायक इस वक्त अंदर हैं। तो मेजोरिटी का अब आंकड़ा जो है वो 32 हो गया है। तो जाहिर तौर पर अभी 32 विधायक इस समय अंदर भी मौजूद हैं, 33 स्पीकर हो गए, तो कुल मिलाकर सरकार के ऊपर तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे या कोई और चेहरा बदला जाएगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। नहीं, लेकिन अगर 2 खेमे की बात करें, एक खेमा तो सीधे सीधे यहां से कमजोर हो गया। प्रतिभा सिंह का खेमा अगर कमजोर हो गया, तो जो नाराजगी की भी बात हो रही है, वो नाराजगी क्या अब एक तरीके से हम ये कहें कि आला कमान के पास एक पॉसिबिलिटी ये बन गई है कि वो इसे काउंटर बैलेंस कर सकता है। वो ये कह सकता है कि हम सीएम बदल रहे हैं, आपकी पसंद का कोई सीएम रख सकते हैं। लेकिन क्या सुक्खू इस चीज के लिए इतनी आसानी से तैयार होंगे जब मेजॉरिटी उनके पास है? देखिए जाहिर तौर पर कल जो मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके जब उनसे बातचीत भी हुई, जब वो वहां पर ऑब्जर्वर से मिलने के लिए जो होटल्स था वहां पर वो गए भी, तो वहां पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उससे साफ तौर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और कॉन्फिडेंस की वजह यही थी कि तमाम विधायक जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। और बाकायदा जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे हैं, पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जब यहाँ पर सभी तमाम विधायकों से बात करेंगे, जो रिपोर्ट भी बनाई जाएगी तो विधायकों से बातचीत के आधार पर भी बनाई जाएगी। जब विधायक ये कहेंगे कि हमारे जो नेता है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे, तो ऐसे में ऑब्जर्वर को, कमान को भी ये निर्णय जो है काफी सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनावों से पहले कोई गलत मैसेज ना जाए। और यही वजह है कि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है कि लोकसभा, उनको भी पता है बीजेपी को कि अगर वो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हरकत करते हैं, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर किया जाता है, तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। और इसी वजह से बीजेपी भी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई थी। और हाँ, उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर अंतर लाया था उसका फायदा जरूर उन्होंने उठाया। अपना एक मेंबर था वो राज्यसभा में भेज दिया 25 की संख्या के होने के बावजूद। जी मुझे पुनीत एक चीज समझाएं कि पहला तो ये कि इस वक्त 32 विधायकों का साथ सुक्खू के साथ है। क्यों? क्योंकि वो उनके घर पे ब्रेकफास्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा पक्ष देखें, बीजेपी के साथ जो लगातार डायलॉग में इन्वॉल्व थे प्रतिभा सिंह का गुट, वहां पर कितने विधायक हैं? देखिए अभी वहां पर फिलहाल कोई विधायक नहीं है, क्योंकि तमाम विधायक, अब 6 विधायक जो है वो बिल्कुल उनको निष्कासित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद संख्या होती है 34। विक्रमादित्य को छोड़ दिया जाए तो 33 विधायक इस समय सरकार के साथ हैं। विक्रमादित्य यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और पर्यवेक्षक यहाँ पर जरूर पहुंच चुके हैं, तो 33 विधायक जो है इस समय सीएम सुक्खू के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी ये क्या ये कहा जा सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का, क्योंकि जिस तरीके की बात कल विक्रमादित्य सिंह कर रहे थे,
अच्छा, सुकू ने से भी जब सवाल पूछा गया सीएम से भी कि विक्रमादित्य सिंह बहुत नाराज है, तो उन्होंने कहा वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कोई बातचीत दोनों के बीच में हो पाई है अब तक? देखिए, कल जब वहां पर ऑब्जर्वर्स के सामने विक्रमादित्य पहुंचे थे, राजीव शुक्ला उनको बाहर लेकर आए थे और उसके बाद बकायदा विक्रमादित्य और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है मुख्यमंत्री, उनकी मुलाकात भी हुई थी वहां पर, उनकी बकायदा वहां पर बातचीत हुई और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उनका जो इस्तीफा था वो भी स्वीकार नहीं किया है। और ये खुद जो विक्रमादित्य उन्होंने बाहर आकर ये बात भी कही थी कि मेरा इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो दबाव नहीं बनाएंगे, उस पर प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक जो मामला इस समय हिमाचल की इसमें ठंडी वादियों में जो राजनीतिक माहौल पूरा गरमाया हुआ है और उसी का ये नतीजा है, क्योंकि अभी तक 33 विधायक जो हैं वो सरकार के साथ दिख रहे हैं। विक्रमादित्य अब अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका दबाव कितना काम लाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर भी यही कह रहे हैं और कल ये भी बता रहे हैं सूत्र कि उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत भी वहां पर करवाई गई थी। प्रियंका गांधी से समझाने के बाद ही कल वो बाहर मीडिया के सामने आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी इस्तीफा वापस नहीं लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर जो है, जो तमाम आलाकमान यहाँ पर पहुंचा हुआ है, वो विक्रमादित्य को मना लेगा। विक्रमादित्य ने यह कहा था कि वो बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल साथ हैं, पार्टी से दूर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा वापस जो है वो जो इस्तीफा दिया वो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर दिया है, पार्टी के वो साथ खड़े हैं। जो ये पूरी सिचुएशन बन रही है उसमें दो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि एक तो पहले कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बचाना चाहती है, फिर चाहे उसे सीएम बदलना ही क्यों ना पड़े। लेकिन सुक्खू क्योंकि उनके साथ मेजॉरिटी में विधायक हैं, वो भी इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। विन विन सिचुएशन लेकिन बीजेपी की रही है। उन्होंने अपना एक सदस्य राज्यसभा हर्ष महाजन को पहुंचा दिया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है।